आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर 14 साइलेंस स्टडी करेंगे। मैं आपको उसमें उसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, और लेकिन इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, आपको एक बात बताना जरूरी है, वो ये कि इसमें पैराग्राफ्स थोड़े से बड़े हैं। तो मैं रीड करता हूं पैराग्राफ टू पैराग्राफ, और पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद फिर उसकी ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूं। तो इसमें पैराग्राफ थोड़े बड़े हैं, तो इसको जो है वो आपको थोड़ा सा बुक सामने रखकर इस तरह देखना होगा कि जब ट्रांसलेशन की बारी है तो आपको उसकी ट्रांसलेशन का भी अच्छे से अंदाजा हो जाए। चैप्टर का नाम है साइलेंस, और फर्स्ट पैराग्राफ है, साइलेंस इज unnatural to man. He begins life with a cry and ends it in stillness. In the interval, he does all he can to make noise in the world. And there are few things of which he stands in more fear than the absence of noise. Even his conversation is in great measure a depressed attempt to prevent a dreadful silence. If he is introduced to a fellow mortal and a number of pauses occur in the conversation, he regards himself as a failure, a worthless person, and is full of envy of the emptiest-headed chatterbox. He knows that 99% of the human conversation means no more than the buzzing of a fly. But he longs to join the buzz and to prove that he is a man and not a waxwork figure. The object of the conversation is not, for the most part, to communicate ideas. It is to keep up the buzzing sound. There are, it must be admitted, different qualities of buzz. There is even a buzz that is an exasperating as a continuing ping of a mosquito. But at a dinner party, one would rather be a mosquito than a mute. Most buzzing, fortunately, is agreeable to the ear, and some of it is agreeable even to the mind. He would be a foolish man, however, who waited till he had a wise thought to take part in the buzzing with his neighbors. Those who despise the weather as a conversation opening seem to me to the ignorant of the reason why human beings wish to talk. Very few human beings join in the conversation in the hope of learning anything new. Making a noise into other people's ear, though they have nothing to tell them except that they have seen 2 or 3 plays, or that they had bad food in a Swiss hotel. At the end of an evening during which they have said nothing at immense length, they justly plumb themselves on their success as conversationalists. I have heard
a young man holding up the monologue of the prince among modern wits for half an hour in order to tell us absolutely nothing about himself with opulent long windedness. None of us except the young man himself liked it, but he looked as happy as if he had a crown on his head. अब इसके ट्रांसलेशन है, खामोशी इंसान के लिए गैर फितरी है। वो रोने के साथ जिंदा रहना शुरू करता है और खामोशी पर खत्म करता है। वक्फे में वो दुनिया में शोर मचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वो शोर की अदम मौजूदगी से ज्यादा खौफ में खड़ा रहता है। यहां तक कि इसकी गुफ्तगू भी बड़े पैमाने पर मौजूद होती है। मुर्दा खामोशी को रोकने की अशद कोशिश करता है। खामोशी को अगर उसे करीबी दोस्त या साथी से तारुफ कराया जाए और गुफ्तगू के दरमियान से इजहार राय किया जाए, कहा जाए, तो वो आमतौर पर इजहार राय नहीं कर पाता। मुर्दा यहाँ पर मतलब ये है कि वो लोग जो बात करने से घबराते हैं 2-3 लोगों के दरमियान या 10 लोगों के दरमियान, तो वो ऐसे में वो जो है वो इजहार राय नहीं कर पाता, तो उसे अपने आप को नाकाम और बेकार शख्स समझकर अपने आप पर अफसोस करता है और अपने आप को नालायक तरीन इंसान समझता है। वो जानता है कि इंसान की गुफ्तगू का 99% यानी 99% मतलब फजूल बातें करना होता है। यहाँ हर फजूल बात को जो है वो मक्खी की गूंज से तशबीह दी गई है। वो इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि वो भी इंसान है और बातचीत का मकसद ज्यादातर, और लोगों की आजकल देखा जाए तो उनकी बातचीत करने का मकसद ज्यादातर किसी अहम बात पर गुफ्तगू करना नहीं होता। बातचीत का मकसद ज्यादातर इजहार राय या नजरियात पर बात करना नहीं होता। बेमकसद गुफ्तगू की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, इनको तस्लीम करना जरूरी है, या हम ये कह सकते हैं कि टिक के एक गूंज भी इतनी ही मायूस कुन है जैसा कि मच्छर का बोलना, जैसे पिंग करना होता है। लेकिन रात के खाने की पार्टी में गूंगा होने की बजाय एक मच्छर की तरह होना ज्यादा बेहतर है। मतलब कि वो कंटिन्यू गूंगा चुप रहने से लोगों के दरमियान उस शख्स की वैल्यू कम होती है, बजाय इसके कि वो मच्छर की तरह भिन 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 करके कुछ ना कुछ बोलता रहे और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लेता रहे। ज्यादातर गूंजना खुशकिस्मती से कान को अच्छा महसूस होता है और इसमें से कुछ जहन को भी सेटिस्फाई करता है या राजी करता है। वो एक बेवकूफ आदमी होगा, ताहम इस वक्त तक उसका इंतजार करता रहा जाए जब तक कि उसके पास पड़ोसियों के साथ बातें करने में कोई दानिशमंदाना ख्याल मौजूद ना हो जाए। वो लोग जो मौसम को बातचीत के आगाज के तौर पर बिला मकसद गुफ्तगू समझते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों के लाइल्म, ऐसे लोग जो हैं वो लाइल्म होते हैं। यानी फिर वो ऐसे इंसान ऐसी बातों पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो अमूमन नई चीजें नहीं सीखना चाहते और नई चीजें सीखने की उम्मीद में बहुत कम लोग गुफ्तगू में शरीक होते हैं। इनमें से कुछ पर इत्मीनान होता है, ऐसे लोग जो महज गुफ्तगू करते ही इसीलिए हैं कि वो ताकि लोगों को उनकी गुफ्तगू पसंद आए, हालांकि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि उन्होंने 2 या 3 माह ड्रामे देखे हों या स्विस होटल में फजूल खाने खाए हों। एक शाम के आखिर में जिसके दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा
جو ہے بہت زیادہ کرنے میں کچھ بھی نہیں کیا، وہ محض گفتگو کی جو ہے حیثیت سے اپنی کامیابی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شور مچانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شور مچا کے ہی اپنی کامیابی جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک قابل انسان ہوں۔ کسی نے اس نوجوان کو تکلیف دی کہ میں نے ایک نوجوان کو ایک آدھے گھنٹے تک شہزادے کی سلطنت میں اس کے کارنامے بلا وجہ سنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی بے مقصد گفتگو کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، سامنے والا سن رہا ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بیکار میں کوئی مقصد نہیں تھا اور ایک بادشاہ ایک شہزادے کی سلطنت کا پورا واقعہ سن لیا جس کے وجہ کوئی مقصد بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سبق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے اس انداز سے سنا کہ نوجوان کو ایسا لگے کہ اس کی تمام باتوں کو پسند کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اس کے سر پر تاج ہو، چاہے وہ باتیں ایسی فضول کیوں نہ کر رہا ہو، بس اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بولنا جانتا ہے، اس لیے ہم اسے سنتے بھی ہیں۔ Many of us indeed do not enjoy conversation unless it is we ourselves who are making the most conspicuous noises. This, I think, is a vice in conversation, but it has its origin in the natural hatred of silence. The young man was so afraid of silence that he dared not to risk being silent about himself, lest a universal silence should follow. If he failed as a talker, it was because he did not sufficiently realize that conversation should be not only a buzz but a sympathetic buzz. That is why the weather is so useful as a subject. It brings people at once to an experience which is generally shared and it enable them as it were to buzz on a same note. Having achieved this harmony, they advance by miraculous stage to the others sympathetic, and as note succeed note, a pleasant and varied little melody is made, as satisfying to the ear and mind as the music of a humming top. The discovery of the new note of sympathy is the secret of all good conversation. It is because this is necessary to good conversation that the conversation of a party of three is often a failure. Two of them discover a note of sympathy and they begin to boast on it enthusiastically, forgetful of the fact that it is an occasion not for a double but a triple buzz. Two of them perhaps have been at the same college or university. They go on for an hour happily sharing experience in sentence like, you remember old Crocker? You remember the day you remember the night he stole the policeman's helmet? But the funniest thing of all was the day he threw the bowl of tulips out of the window and nearly burnt old, naming a famous professor of Greek. Reminiscences are the best conversation in the world for two. They warm the heart and excite the brain like tea. But the third man is all the more conscious of being out in the cold, because these names are events which are the sort of algebraic symbols of the emotions are to them meaningless.
He does not know who Old Trouser was and who Old Billy Tuck or who Old Snorters Richardson. He smiles mechanically as the other laugh with dreamier and dreamier eye over incident that convey all the fun of youth to them, but that to him seem mere inanities of the memory. A conversation of this kind is bad indeed, because it's condemned the third man to the torture of the compulsory silence. You may have a silent conversation of three, where one man is voluntarily silent, but you cannot have a good conversation where one of the three is necessarily silent. अब इसका सेकंड का ट्रांसलेशन है, हम में से बहुत से लोग गुफ्तगू से लुत्फानंदोज नहीं होते जब तक हम खुद ही इसकी आवाज को तेजतर नहीं करते, कि मेरे ख्याल में बातचीत में ये अक्लमंद है, लेकिन खामोशी अपने अंदर खुद ही एक फितरत रखती है। नौजवान यानी आजकल देखा जाए तो हम लोग जो है वो खामोशी से इतने खौफजदा होते हैं कि हम खामोश रहने का खतरा मोल नहीं लेते, और ना ही ऐसा करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने खामोश हो जाएं कि हम इस दुनिया में अपना रहने का मुकाम ही खो दें। अगर वो बतौर गुफ्तगू नाकाम हो गया तो उसकी वजह यह थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि गुफ्तगू बिला मकसद गुफ्तगू हमदर्दाना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि मौसम एक मजमून की हैसियत से इतना मुफीद है कि वो लोगों को एक साथ तजर्बा करने के लिए और अपने तजर्बात को एक दूसरे के साथ पेश करना के लिए बेहतर होता है, जो आम तौर पर मुश्तरका है, और इन्हें इस काबिल बनाता है कि वो बिला मकसद गुफ्तगू भी किसी मुश्तरका मौजू पर करें। हम आंगी हासिल करने के बाद वो दूसरे हमदर्दों की तरफ से मौजजाती मरले पर आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही मौजू गुफ्तगू कामयाब हो जाता है एक खुशगवार राग बनता है। जिस तरह कान और जहन मौसीकी की गुनगुनाहट और राग से तस्कीन और खुशगवार एहसास को समझता है, हमदर्दी के नए मौजूआत की दरियाफ्त तमाम अच्छी गुफ्तगू का राज है। इसकी वजह यह है कि अच्छी गुफ्तगू के लिए जरूरी है कि तीनों अफराद की गुफ्तगू कामयाबी पर खत्म हो। अक्सर अफराद की गुफ्तगू नाकामी पर खत्म होती है, तीन अफराद की, इनमें से दो को हमदर्दी का एक मौजू मिल जाता है और वो इस पर जोशो खरोश से गुफ्तगू करने लगते हैं। वो इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि ये मौका एक डील नहीं है बल्कि तीन अफराद की गुफ्तगू है। इनमें से शायद दो एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, तो एक घंटा खुशी के जुमले शेयर करते हैं, जैसे कि तुम्हें पुराने क्रॉकर्स याद हैं, तुम्हें वो दिन याद है, तुम्हें वो रात याद है जब उसने पुलिस वाले का हेलमेट चोरी किया था। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात यह थी कि उसने ट्यूलिप्स का प्याला खिड़की से बाहर फेंक दिया था और करीब करीब पुराने ब्रांड का था वो, और किसी एक यूनान के प्रोफेसर का नाम लेकर ये सब चीजों को पिछली वो याद करते हैं। याद दहानी कराना ये दुनिया में दो अफराद की बेहतरीन गुफ्तगू का जरिया है। वो दिल और दिमाग को चाय की तरह गरमाते हैं, लेकिन तीसरा आदमी बाहर पड़ने वाली सर्दी के बारे में ज्यादा शऊर रखता है, क्योंकि ये नाम और वाकयात जो इनके नजदीक जज्बात की तरह की एक अलजबरिक अलामत हैं, वो इसके लिए बेमायनी है। वो नहीं जानना चाहता कि पुराना ट्राउजर कौन था, पुराना बिली टप था या
पुराना रिचर्डसन वगैरह वो जो इनकी क्लास में पढ़ते थे, ये सब कौन लोग हैं? वो बेकानी तौर पर मुस्कुराता है जैसे दूसरे हंसी वाले, ख्वाब देखने वाले और ख्वाब देखने वाले वाकयात पर निगाह डालते हैं जो इन तक जवानी के तमाम तफरीक को पहुंचाते हैं, लेकिन इसके नजदीक इसकी यादें महज यादगारी कड़ियां हैं। इस तरह की गुफ्तगू वाकयतन दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसकी मुजम्मत की जाती है। तीसरा आदमी मजबूरी और खामोशी का अजाब बर्दाश्त करता है। आप में तीन की गुफ्तगू उम्दा सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जहां एक शख्स रजाकाराना तौर पर खामोश रहे, लेकिन आपकी अच्छी गुफ्तगू नहीं हो सकती जहां एक शख्स रजाकाराना तौर पर खामोश रहे। ये अभी तक जो है वो मैंने 2 पेजेस को यानी 2 पैराग्राफ्स को इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने पेश किया है। बाकी इसका पार्ट 2 में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।